Hello everyone, welcome to unit number 14, biomolecules, and today our lecture number 13 we will discuss about the classifications of amino acids, properties of amino acids, how many amino acids are present, what are the nomenclature of these alpha amino acids. So before we start these sessions, we quickly recap our last session about the proteins and the introductions of the proteins. We know that in the case of proteins, it's essential for living beings, right? So according to our discussion about the proteins, so it's the most abundant biomolecules of the living system. Then the chief sources of proteins are milk, cheese, pulses, peanuts, fish, meat, etc. They occur in every part of the body like muscle, skin, hair, nails, tendons, arteries, connective tissues, likewise. Okay, they are also required for the growth as well as maintenance of the body. We know that the word protein is derived from the Greek word proteos, which is the meaning that it's a primary or prime importance. So in nutshell, each living cell is made up of thousands of different proteins. Chemically, proteins are nothing but it's a condensation polymers, actually polyamides, right? In which the monomeric units are alpha amino acids. All proteins contains the elements carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. But some of these may also contain sulfur, phosphorus, iodine, traces of metals such as iron, copper, zinc, manganese. We know that all proteins on partial hydrolysis gives peptides of varying molecular masses, which is upon complete hydrolysis gives the alpha amino acids. So these are our discussion in our last session, right? Today we start with a very good journey about the amino acids. We know that this amino acid, this alpha amino acids is a building block of proteins. Why the name alpha amino acids? You know that in this case you observe that NH2 and COOH means amino acid contains amino group and carboxyl as a functional groups. So it's called as an amino acid. Number 2, this amino acid NH2 and COOH, right? So the positions, depending upon the relative positions of NH2 group, the amino acids are classified into alpha, beta, gamma, delta, etc. For example, NH2 and COOH, here the both functional groups are attached with a single carbon is called as an alpha amino acid. If the structure is like that, COOH, CH2, CH2, NH2, so it's called as a beta amino acid. Likewise, gamma amino acid, delta amino acid. But we know that only alpha amino acids are obtained by the hydrolysis of protein, right? यहाँ पे जो हमें नेचर में जो भी प्रोटीन मिल रहा है उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड ही मिलेगा. दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है. दैट्स व्हाई दिस अल्फा एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. अभी आपको मालूम होगा, बी ग्रुप के बच्चे को भी मालूम होता है कि 26 डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स, 26, राइट, 26 different alpha amino acids have been isolated by the hydrolysis of various proteins. Out of these 20 amino acids occur in almost all the proteins, जिसमें से 20 है ना सभी proteins में होते हैं, right? While the remaining 6 are found in special tissues. So अभी मुझे ये दिखाना है कि ये 20 है या 26 है तो वो अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें NH2 है, CH है, लेकिन ये साइड चेन से अलग हो रहे हैं, right? The properties of the side chains of amino acids determine the properties of the protein they constitute. It means that these amino acids differ from one another in the nature of the side chain group. We know that अभी क्या होगा कि एमिनो एसिड्स है which can be named by the IUPAC system से भी हम ले सकते हैं.
लेकिन जनरली विच इज नॉन बाय देयर कॉमन नेम्स, और इसको हम ट्राइबल नेम भी बोल सकते हैं। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा कि ग्लाइसिन करके कंपाउंड है, राइट। ग्लाइसिन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको हम 2 एमिनो इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, या कई बच्चे अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्लाइसिन उसका ट्राइबल नेम मुझे यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि दिस ट्राइबल नेम्स आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम द नेम ऑफ द सोर्स और द नेम ऑफ द सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द एमिनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन की एक प्रॉपर्टीज है, उसका स्वीट टेस्ट होता है, तो ग्रीक में उसको ग्लाइकोज बोलते हैं, यानी स्वीट है, तो उस वजह से उसका नाम यहाँ पे रखा गया है ग्लाइसिन। एक और भी एमिनो एसिड्स मैं आपको दिखाऊंगा, सभी के लिए मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वही मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। टायरोसिन है तो वो फर्स्ट चीज में से ऑब्टेन हुआ था, यानी इसमें से मिला हुआ था। टायरोस का मीनिंग ग्रीक में होता है चीज, यानी इसके लिए उसका नाम हो गया टायरोसिन। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम, तो कि इस तरह से हम 20 या 26 नाम, उसका जो ट्राइबल नाम है यहीं पे हमारे एग्जाम यहाँ पे हमारी बुक में यहाँ पे दिया गया है। तो पूरा नाम लिखने में भी कई बार दिक्कत हो रही थी, राइट। सो ईच एमिनो एसिड हैज बीन गिवन अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन, और उसको कोड भी बोलते हैं, कि कई बार इसको कोड भी बोल सकते हैं, जैसे 1 लेटर कोड है और 3 लेटर सिंबल्स है। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ग्लाइसिन है तो उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है GLY उसको कहते हैं, और उसका 1 लेटर कोड क्या है, कैपिटल G है। इस तरह से एलेनिन है तो हम उसको ALA बोलते हैं, और कई बार उसका 1 लेटर कोड में भी हम आपको, लेकिन 1 लेटर कोड में थोड़ी दिक्कत क्या हो रही थी पहले, जैसे ग्लाइसिन का भी G है, ग्लूटामिन का भी G है, तो ग्लूटामिन का G बदल के उसका Q रख दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन जो 3 लेटर सिंबल्स में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो पाएगी। अच्छा, जो मैं यहाँ पे अभी आपको जो पूरा टेबल में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ स्ट्रक्चर्स ऑफ नेचुरल एमिनो एसिड्स का, तभी हम इसके साथ बातचीत शुरू करेंगे। और एक एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशंस का भी पॉइंट आता है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड। सो वी नो दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। उसको हम न्यूट्रल, फिर हम उसको बोलेंगे एसिडिक और बेसिक। जैसे मैं अभी आपके साथ पहले जो मैं बात करना चाहता हूं वो मैं आपके साथ न्यूट्रल एमिनो एसिड की बात करूंगा। न्यूट्रल एमिनो एसिड आउट ऑफ जो 20 है उसमें से 14 है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक NH2 और COOH ग्रुप है, तो यानी ये बेसिक है, ये एसिडिक है, दोनों एक एक है तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे R ग्रुप में जैसे मैं यहाँ पे CH2 COOH लगाता हूं तो 2 COOH आ गए, अगर मैं यहाँ तो एसिडिक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे CH2 NH2 लगा देता हूँ तो 2 NH2 आ गए। सो इफ योर अल्फा एमिनो एसिड कंटेनिंग 2 NH2, so it's classified under basic category, but if the having a 2 COOH, they classified under a acidic category. But if your R does not containing such a type of acidic or basic group, it means that your alpha amino acid is neutral in nature. ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। फिर एक और भी आता है कि एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स का भी एक क्लासिफिकेशन है। मैं आपको एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल को इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हमें जो प्रोटीन बनाना है ना, तो उसके लिए 20 है एमिनो एसिड्स में से हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें से ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा बॉडी है, विच कैन सिंथेसाइज ओनली 10। हमारे बॉडी में सिर्फ 10 ही एमिनो एसिड्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाकी के 10 नहीं कर सकते हैं, राइट। सो व्हाइल द रिमेनिंग 10 विच द ह्यूमन बॉडी कांट सिंथेसाइज, तो उसको हम कहां से लेना पड़ेगा, फूड में से लेना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल्स एमिनो एसिड। और जो एमिनो एसिड्स मुझे हमारे बॉडी में बन ही रहे हैं तो मुझे फूड में लेने की कोई उसमें जरूरत नहीं है, तो उसको हम नॉन एसेंशियल्स बोलेंगे। तो अभी जो हम 20 का लिस्ट लगाएंगे ना, तो इसमें से 10 क्या है, एसेंशियल है, बाकी के 10 क्या है, नॉन एसेंशियल्स है। नॉन एसेंशियल्स मीन्स अवर ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज सच ए टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी बना नहीं पा रहा है, फिर भी हमें प्रोटीन्स बनाने के लिए उसकी जरूरत होती है, तो मैं उसको फूड से लेना पड़ता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स बोलेंगे। कई बच्चे को ऐसा होता है कि सर जी ये एसेंशियल एमिनो एसिड की जरूरत क्या होती है। नो, दिस एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी,
अगर वो नहीं होता है तो हमारे जो शरीर में डेफिशिएंसी आ जाती है, उससे कुछ डिसीज होते हैं। जैसे मैं आपको एक डिसीज दिखाना चाहता हूँ, क्वाशियोर, आपने पढ़ा होगा। जैसे ये क्वाशियोर है तो उसमें थोड़ा वाटर बैलेंस हमारे बॉडी होता है ना, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकम वाटरी एंड ब्लॉटेड हो जाने की वजह से वो फूल जाते हैं, तो उसको हम क्वाशियोर कहते हैं। लेकिन ये एक एमिनो एसिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर मैं लास्ट में एक और, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, एक और क्लासिफिकेशंस भी मैं आपको समझाऊंगा, और वो है कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स का। लेकिन आज हम फिर से यहां से पहले से हम शुरू करेंगे, और वो है न्यूट्रल एमिनो एसिड। द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड मीन्स इन योर एमिनो एसिड ओनली 1 NH2 एंड 1 COOH आर प्रेजेंट। ठीक है, अभी हम हमारी जर्नी शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है ग्लाइसिन। उसका जो 3 लेटर्स है उसको हम GLY, इसका जो स्पेलिंग में GLY है, और उसका जो 1 लेटर कोड है वो G, उसकी साइड चेन में H है। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट यहाँ पे दिखा हुआ है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक टेबल लिखता हूँ, यहाँ पे शुरू करता हूँ। 6.1 है, आपको ये इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब देखिए पहले ग्लाइसिन के बारे में। मैंने अभी आपको बोला था कि ग्लाइसिन का नाम क्यों रखा गया है, तो कि ये जो नाम है उसका जो लैटिन नाम था ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मीनिंग क्या होता है? स्वीट। तो इसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से उसका नाम ग्लाइसिन रखा हुआ है। यहाँ पे आर ग्रुप यहाँ पे देख रहे हैं, वो मैं H रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये ग्लाइसिन हो जाएगा। देखिए ये है ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बाकी के जो 20 है उसमें से 19 ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन? द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन इज जॉइंट विद डिफरेंट एटम्स और मोलेक्यूल्स, राइट। उसका जो ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे NH2 अलग है, H अलग है, COOH अलग है, लेकिन R में जैसे हमने H डाल दिया तो 2 H एक ही हो गए, एक ही कार्बन के साथ। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये ऑप्टिकली, यानी इसको हम डेक्स्ट्रोलीवो या कैपिटल DL या कैपिटल RS में नहीं डाल सकते। बाकी के जो भी एमिनो एसिड्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही है। दूसरा मैं अपनी तरह से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। दूसरा है, उसका नाम है एलेनाइन। उसका जो सिंबल है वो है ALA, और इसमें जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है। यानी R में आप मिथाइल डालोगे तो ये हो जाएगा, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.1। तीसरा मेरे पास है वो है वेलिन। जैसे मैंने एस्टेटिक किया हुआ है तो वो एसेंशियल एमिनो एसिड का है, यानी ये मुझे ये बाहर से फूड में से मुझे मिलेगा तो ही, क्योंकि मेरा बॉडी ये वेलिन बना नहीं पा रहा है। ठीक है, उसका है VAL, कैपिटल V है, और CH3 ट्वाइस, और उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में आप कुछ भी चिंता आज मत कीजिए। डेफिनेटली हम चिंता करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, नंबर 4 है मेरे पास है, वो है ल्यूसीन। क्या है उसका नाम? ल्यूसीन। वो भी क्या है? एसेंशियल है। LEU is a 3 letter symbol for leucine. Capital L is a 1 letter code for leucine. एंड उसमें जो R ग्रुप है वो है CH2CH CH3 ट्वाइस ग्रुप है। यानी आप देखिए यह हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, यानी एक NH2 एक COOH है, इसकी वजह से वो न्यूट्रली हो पा रहा है, और उसका भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नंबर 5 में यहाँ पे ले रहा हूं, वो है आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन के साथ ही ऐसा आइसोल्यूसिन है, उसका सिंबल सेम यही है। LEU के आगे मैंने I डाल दिया है, 1 लेटर कॉड है वो I है। अच्छा, वो दोनों में चेंज क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, CH2 CH3 और CH3। यहाँ पे क्या था? पहले CH2 था, यहाँ पे क्या है? देखिए ये है ना, ये जो पोर्शन ये आगे चला गया है। यहाँ पे CH CH3 CH2 CH3 है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया आइसोल्यूशन उसका भी 6 ही है। फिर मैं नंबर 6 दिखाना चाहता हूं, वो है फिनाइल एलेनाइन। देखिए आपने एलेनाइन में क्या देखा था? मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या है? इसका नाम फिनाइल एलेनाइन, यानी एलेनाइन में आपको फिनाइल और डालना है। ठीक है, उसका जो सिंबल है
3 लेटर सिंबल, वो है PHE, और 1 लेटर कोड है F, और उसको हम लिखेंगे इस तरह से CH2C6H5, या फिनाइल भी हम PH भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 5.9 उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। समझ में आ रहा है? फिनाइल एलेनाइन भी एसेंशियल्स एमिनो एसिड में ही आ रहा है। नंबर 7 है मेरे पास, वो है मिथियोनिन, और मिथियोनाइन भी हम उसको बोल सकते हैं। मिथियोनिन या मिथियोनाइन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो मिथियोनिन है मेरे पास, या हम इसको मिथियोनाइन भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है, तो उसका जो सिंबल है वो है MET। ये भी एसेंशियल्स एमिनो एसिड में ही आ रहा है। फिर इसका कैपिटल M है, और इसमें मुझे एक देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सल्फर ग्रुप है, उसको हम थायोईथर भी बोल सकते हैं, राइट। और 5.7 में उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। नंबर 8 में हम जाते हैं। नंबर 8 है वो है ट्रिप्टोफैन। ये भी एसेंशियल्स एमिनो एसिड है। TRP उसका 3 लेटर सिंबल है, कैपिटल W, और हम इसको यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए CH2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए NH, इस तरह से इसका ग्रुप है, राइट। ये 5.9 एरोमेटिक कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ होता है ट्रिप्टोफैन के साथ। नंबर 9 आप देख रहे हैं वो है सीरीन। इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीन है उसका जो सिंबल है, सीरीन का सिंबल देखिए, सॉरी SER उसका सिंबल है, कैपिटल S है, और ये अल्कोहल ग्रुप दिखा रहा है CH2OH। कई बच्चे को होगा कि सर जी ये सब कुछ मुझे मेमोराइज करना पड़ेगा। डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि JEE मेन और नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से कई क्वेश्चंस यहाँ पे वो निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको ये क्रैम करके ही आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 10 है वो है सिस्टीन। उसको हम सिस्टाइन भी बोल सकते हैं, सिस्टाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो सिंबल है वो है CYS, और उसका कैपिटल C, और इसमें दोनों में बिल्कुल नजदीक है। देखिए ये अल्कोहल है और ये थायोल है, ठीक है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? ये 5.1 पे चला गया है। नंबर 11 है ना, वो है ग्लूटामीन। GLN है, कैपिटल Q, क्योंकि G 2 बार तो नहीं आ सकता है। पहले तो ग्लाइसिन में हमने लगाया था, यहाँ पे उसका सिंबल Q कर दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे CH2CH2CONH2 ग्रुप, एमाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है 5.7। नंबर 12 है वो है थ्रियोनिन, और थ्रियोनाइन भी कई बार किसको बोलते हैं, वो भी एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स में आ रहा है। THR है, कैपिटल T है, और इसका हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये OH है, ठीक है। ये भी 5.7 पे है। आपको क्लियर हो रहा है? नंबर 13 में मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है टाइरोसिन। मैंने अभी आपको पहले बोला था कि ये जो है पहले कहाँ से मिला था? टाइरोज में से मुझे मिला था, चीज में से। इसको कहाँ से मैंने लिया हुआ था? चीज में से मैंने लिया हुआ था। तो चीज का मतलब क्या होता है? लैटिन में क्या होता है? टाइरोज होता है। उसमें से उसका नाम क्या हो गया? टाइरोसिन हो गया है, ठीक है। तो उसका जो TYR कैपिटल Y, और देखिए इसमें क्या है, फिनोलिक ग्रुप है, राइट, 5.6। ये नंबर 14 है ना, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। प्रोलीन है, PRO है, P है, देखिए। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, वो आपको स्ट्रक्चर्स कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे NH ग्रुप है, और यहाँ पे COOH है। लेकिन ये है ना, R नहीं है, ये R नहीं है। आपको समझ में आ गया? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। देखिए फिर से क्यों कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाया था? NH2CHR राइट। तो इसमें क्या हुआ, ये NH है, ये R के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से साइकिल हो रही है। तो इस तरह से देखिए, जो साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है, तो वो क्या है? NH है, यहाँ पे C है, COOH है,
देखिए ये साइकिल में CH2 के साथ जुड़ गए हैं, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये R नहीं है। देखिए फिर से दूसरा ये है ना, देखिए आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, ये सेकेंडरी एमाइन ग्रुप यहाँ पे लिया हुआ है। बाकी सभी जगह में NH2 अकेला ही होता है, यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन ग्रुप है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो मेरी पास्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में डाले गए थे। तो अभी जो मैंने 14 का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है, 14 का वो बिल्कुल कैसे है, न्यूट्रल है। आउट ऑफ 14 में से आपने कुछ देखा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग किससे है, 7 लोग कैसे है, एसेंशियल्स है, राइट। अभी मैं एसिडिक एमिनो एसिड की बात करूंगा, एसिडिक एमिनो एसिड्स। द मीनिंग ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि दोस अल्फा एमिनो एसिड हैविंग अ 2COOH in 1 NH2 group इट्स क्लासिफाइड अंडर एसिडिक एमिनो एसिड्स, तो वो एसिडिक एमिनो एसिड में चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 15 नंबर पे आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप समझिए, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, तो उसको हम ASP भी बोल सकते हैं। इसका कैपिटल D सिंबल है, क्योंकि कैपिटल A तो मैंने लगा दिया था LA9 में, ठीक है। अभी उसमें ग्रुप क्या है, देखिए CH2COOH ग्रुप है और 3 है। यहाँ पे देखिए CH2COOH R में है, साइड चेन में। एक तो COOH है ही, अल्फा के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा R में रखा हुआ है, तो ये एस्पार्टिक एसिड की मैं बात कर रहा हूं। देखिए एक इस तरह से मेरे पास एक और भी है, एस्पार्जिन, इसको क्या बोलेंगे, एस्पार्जिन, वो ASN है, उसका कैपिटल N है, और इसका जो सिंबल है वो है इसका जो R है वो CH2CONH2 है, यानी एमाइड, दोनों एक ही दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पे नाम क्या रखा था, एसिड, यानी एसिड होगा। यहाँ पे एसिड नहीं है, एस्पार तो है, देखिए, लेकिन ये इसका एमाइड में चला गया है। इस तरह से नंबर 17 मेरे पास है, उसका नाम हम बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, यानी GLU, कैपिटल E है, और उसमें क्या है, CH2COOH है और 3.2 है। अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पे क्रेमिंग या किस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा ये मैं समझाना चाहता हूँ। ग्लूटामिक एसिड देखा आपने, क्योंकि इसमें एसिड है, इसमें देखा, यानी 3 जो हमारे पास एसिडिक एमिनो एसिड, इसमें से 2 के नाम में एसिड है, यानी इसमें से एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया है ग्लूटामिक में। ग्लूटामिन देखा आपने, ग्लूटामिन देखिए यहाँ पे CH2COOH कर देते तो ग्लूटामिक एसिड हो जाता है। यानी जो एस्पार्जिन है उसमें एमाइड है, ग्लूटामिन में भी एमाइड है, बाकी के 2 में क्या है। तो मेरे पास अभी जो मैंने क्लासिफाइड किया हुआ है उसमें से 3 ही ऐसे हैं कि वो कहाँ पे चले गए हैं, एसिडिक में चले गए। और एक और भी बात आपको नोट करनी पड़ेगी, तीनों में से एक भी एसेंशियल नहीं है, यानी हमारी बॉडी में ही ये जनरेट हो रहे हैं। लास्ट वन हम देखेंगे, बाकी के जो 3 है वो है बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड्स का हम कुछ मतलब इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि दोस एमिनो एसिड हैविंग 2 NH2 and 1 COOH, so they are basic in nature, तो इस तरह से वो बेसिक में चले गए हैं। तो नंबर 18 का मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं वो है लाइसिन, ये एसेंशियल एमिनो एसिड में चल रहा है, LYS है, K है, तो CH2 थ्राइस NH2 है। देखिए अब यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया है, तो 2 NH2 ग्रुप है, एक तो पहले से था ही NH2 में, ठीक है, ये R में भी NH2 यहाँ पे डाला हुआ है। नंबर 19 में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो है आर्जिनाइन, और आर्जिनिन भी उसको बोल सकते हैं। इसका सिंबल है ARG, कैपिटल R है, ओके। आर्जिनिन में जो स्ट्रक्चर्स है वो कुछ इस तरह से है, CH2 2 टाइम्स, यहाँ पे NH है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड NH है और NH2 है, तो ये 10.8 में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप बेसिक ग्रुप यहाँ पे भी है। और नंबर 20 जो मेरा है उसका नाम है हिस्टिडीन, वो भी एसेंशियल है, HISH, और उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से हम दिखाएंगे, NH होगा ना, 3 वैलेंसी हो गई, ओके फाइन, और उसका नियर अबाउट 7.6 है।
यानी हमें ये पता चला कि बेसिक सभी है वो एसेंशियल है, 3 ही बेसिक है, 3 ही एसिडिक है, बाकी के 14th है वो नेचुरल मीन्स यानी न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कैसे इस तरह से उसको समझना चाहिए। ये नंबर 20th का मैंने जो अभी आपको समझाया तो वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पे उसको कहाँ पे हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है। एक और यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन में अपनी तरह से समझाना चाहता हूं। मैंने आपको पहले से भी बोला था कि एक है कंप्लीट प्रोटीन्स और दूसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। सो प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड इन अबाउट द राइट प्रोपोर्शंस फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशंस। जैसे हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें पूरे 10 के 10 एसेंशियल एमिनो एसिड वो भी अच्छी तरह से अपनी प्रोपोर्शंस में हमें मिल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट प्रोटीन्स बोलेंगे। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? जैसे मेरे पास मीट है, फिश है, मिल्क है, एग्स है, ठीक है, तो यहां से मुझे मिल सकता है। सो दे कंटेन कंप्लीट प्रोटीन्स। इसमें सभी 10 आवश्यक जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, राइट, तो वो मुझे इसमें से मिल रहे हैं, तो उसको हम कंप्लीट बोलेंगे। इस तरह से इनकम्प्लीट प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, तो इसका मतलब कुछ हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि प्रोटीन्स विच आर डेफिशिएंट इन वन और मोर ऑफ द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एक भी कम हो सकता है, हमारे देश में से 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कुछ इस तरह से मिल सकते हैं, तो उसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स बोलेंगे। देखिए, जो भी प्लांट प्रोटीन्स हमें मिल रहा है, प्लांट प्रोटीन्स यानी प्लांट में से जो भी प्रोटीन्स मुझे मिल रहे हैं, दे आर जनरली इनकम्प्लीट। ठीक है, जनरली इनकम्प्लीट। जैसे मैं आपको बोलता हूं, जैसे मेरे पास राइस है, राइट, मेरे पास कॉर्न है, मेरे पास व्हीट है, राइट, जैसे मेरे पास राइस, कॉर्न और व्हीट है, तो इसमें एक कंपाउंड नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे लाइसिन। उसमें होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? लाइसिन है ना, वो इसमें मुझे मिलता नहीं है, राइट। राइस है ना, देखिए राइस में एक तो लाइसिन तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, एक राइस में एक और डेफिशिएंसी मुझे यहां पे है, वो है थ्रियोनाइन की। थ्रियोनाइन भी उसमें नहीं मिल रहा है, इसमें थ्रियोनाइन है ही नहीं राइस में, राइट। जैसे कॉर्न है, कॉर्न, तो कॉर्न में एक और यहां पे ट्रिप्टोफन भी नहीं है, ट्रिप्टोफान वो नहीं होता है, यानी कॉर्न में 2 नहीं है, लाइसिन भी नहीं है और ट्रिप्टोफैन में भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पे बात कर रहा हूं बीन्स, मैं आपको बात कर रहा हूं पीस एंड अदर लेग्यूम्स। जैसे ये जो हम दिखा रहे हैं बीन से, पीन से, तो उसमें भी मिथियोनिन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? मिथियोनिन नहीं होता है। इसमें कंप्लीट होता है, ये बीन्स है, पीज है, सब भी, लेकिन मिथियोनिन के बाद बाकी के 9 है वो पूरे इसमें होते हैं। सो द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एमिनो एसिड मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय द अदर प्रोटीन रिच डाइट लाइक पल्सिस। जैसे हम पल्सिस है तो उसमें से सभी हमें मिल जाते हैं बाकी के, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हम पल्सिस का यूज कर रहे हैं, राइट। सो ये जो मैंने आपको अभी समझाया वो मैंने कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में मैंने बात की। ये आपकी बुक में नहीं है, आपको समझाया नहीं हुआ है उसमें, तो आपको ये क्लियर हो गया। फिर से आज हमने क्या क्या पढ़ा उसमें? आज हमने ये पढ़ा कि सर जी अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होता है, उसको अल्फा क्यों बोलते हैं, उसमें डिफरेंट आर क्या होते हैं। 26 एमिनो एसिड्स में से हमें 20 एमिनो एसिड्स के बारे में, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, उसके 3 लेटर सिंबल के बारे में, उसके 1 लेटर सिंबल के बारे में, उसमें क्या साइड चेन होती है, हमें यह भी मालूम पड़ा कि 14 न्यूट्रल है, 3 एसिडिक है। जो भी 3 एसिडिक है वो एसेंशियल्स नहीं है, जो बेसिक है सभी एसेंशियल्स है, ठीक है। फिर हमने प्रोलिन में एक देखा कि इसमें सेकेंडरी एमाइन होता है, बाकी के सभी जगह में प्राइमरी एमाइन होता है। ग्लाइसिन में हमने ये पढ़ा कि उसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी के जो भी एमिनो एसिड्स हमें दिखाई देंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। तो
तो फिर उसका भी नॉमेनक्लेचर मुझे फ्यूचर में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ पे समझ पाए हैं और एसेंशियल्स नॉन एसेंशियल्स का भी हम पता लगा पाए हैं और कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के बारे में भी हमने आज कुछ बात की थी। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ही रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।